Dear students, welcome to this sixth lecture of BSc First Year Mathematics, Paper First, Trigonometry. In the last lecture, we extended domain of trigonometric functions and exponential functions from real line to complex plane. The highlights of the last lecture were the following results and definitions. In the previous lecture, we proved this Euler's identity, which is e to the power I theta equals cos theta plus I sin theta. And then this idea was extended to complex variables. Here, theta is a real variable, but z is complex. So the idea of e to the power I theta equals cos theta plus I sin theta, where theta is real number, was extended to complex numbers and it was defined. Then, with the help of this e to the power I theta equals cos theta plus I sin theta, we managed to prove cos theta equals e to the power I theta plus e to the power minus I theta over 2 and sin theta equals e to the power I theta minus e to the power minus I theta upon 2i, where theta is a real number. Again, the same idea was extended to complex numbers and we defined, actually these are definitions, ये जो आप देख रहे हैं cos z और sin z ये definitions हैं और ये cos theta और sin theta के ये results हैं. So then the idea was extended to complex numbers and we defined cos z equals e to the power iz plus e to the power minus iz over 2 and sin z as e to the power iz minus e to the power minus iz over 2i. Then similarly, as in calculus course, we can prove using Maclaurin's theorem that cos theta is 1 minus theta square over factorial 2 plus theta power 4 over factorial 4 and so on. That idea can be extended to define cos z, where z is here, z again, z is a complex number. So cos z is 1 minus z square by factorial 2 plus z to the power 4 by factorial 4 and so on. And similarly sin z is this. Now the interesting facts about these results are that sin square z plus cos square z is still 1. We know that sin square theta plus cos square theta is 1, but interesting fact about it is sin square z plus cos square z equals 1. I proved it in the last term. Similarly, sin 2z, sin 3z, sin 4z, cos 2z, cos 3z, sin minus z, cos minus z, all these results hold in the same way as they hold for theta, which is real. Similarly, as we know that sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. In the same way, sin z1 plus z2 is sin z1 cos z2 sin a cos b plus cos z1 sin z2. It can also be proved very easily. So these are main results and interesting facts which hold good for complex numbers also. Today we shall begin with the periodicity of exponential and trigonometric functions. अभी मैंने तुरंत बोला periodicity of exponential and trigonometric functions. जहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात है, हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक हैं. जैसे कि अगर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इफ़ आई प्लॉट sin theta where theta is real number, then I get something like this, and this function, this graph is certainly periodic. हम क्या देखते हैं कि ये ग्राफ पीरियोडिक है और 0 से 2 पाई के बीच में जिस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा उसी तरह का ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में प्लॉट होगा और आगे भी इसी ग्राफ को या इसी आइडिया को कंटिन्यू कर सकते हैं और पूरा ग्राफ पूरी रियल लाइन पर हम लोग ट्रेस कर सकते हैं. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x. सिमिलरली cos x, tan x, ऑल दीज फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस. लेकिन मैंने बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो जहाँ तक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की पीरियोडिसिटी की बात है, हम जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ट्रेस करें और सपोज दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड
let us try to plot y equals e to the power x, then we will get a plot like this, जो कि इस तरह से आगे, और अब जब आप x को निगेटिव साइड में लेते जाएंगे तो ये इस तरह से 0 की तरफ टेंड करेगा, लगातार ये डिक्रीज करता जाएगा। सो ये प्लॉट अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा कि साइन x का प्लॉट था वो तो पीरियोडिक प्लॉट था, वो साफ साफ नजर आता था कि इट इज अ पीरियोडिक प्लॉट। लेकिन अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x की बात हम कर रहे हैं तो इसमें कोई भी पीरियोडिसिटी नहीं है। दिस इज नॉट पीरियोडिक ग्राफ, दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। So it is not periodic function, but the heading was periodicity of exponential and trigonometric functions। तो आखिरकार e to the power x पीरियोडिक कैसे हुआ? तो देखिए e to the power x पीरियोडिक है अगर x रियल नंबर है तो नहीं, लेकिन अगर x कॉम्प्लेक्स नंबर है then it is a periodic function। I am talking about a function w equals fz where fz is e to the power z। चलिए कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की ये पीरियोडिक कैसे है, और जहां पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज x प्लस आई वाई। अच्छा, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज x प्लस आई वाई, देन x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स। सो हेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। एक काम करते हैं, e टू द पावर z को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस आई वाई। अच्छा, जो मैं यहाँ पे अभी करने जा रहा हूँ ये आप सभी लोगों के काम आएगा जब आप लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेशन कर रहे होंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। e टू द पावर z वेयर z इज x प्लस आई वाई, या ऐसा कहें कि e की पावर में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसका रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट y है, और वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखी हुई क्वांटिटी है e की पावर में। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर x और e टू द पावर आई वाई को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर y एक रियल नंबर है, और फिर आयलर्स थ्योरम यूज करेंगे, और e टू द पावर आई थीटा आई मीन टू से, एंड e टू द पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस आई sin थीटा। सो हियर वी विल गेट e टू द पावर आई वाई इज cos y प्लस आई sin y। so the real part of e to the power z। देखिए यहाँ पर दो चीजें हम लोग एक साथ सीख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ e to the power z into real and imaginary parts। so real part of e to the power z is e raised to the power x cos y plus e to the power iota e to the power x sin y। अच्छा, अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शंस हैं, और वो पीरियोडिक फंक्शंस कहाँ हैं, cos y और sin y में। अगर हम cos और sin में 2 पाई हम ऐड करते हैं, y के प्लेस पर y प्लस 2 पाई करते हैं, सिंस cos एंड sin बोथ आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम लोग यहाँ पर e टू द पावर x cos y के प्लेस पर 2 पाई प्लस y प्लस आयोटा e टू द पावर x sin, एंड अगेन y के प्लेस पर 2 पाई प्लस y, अगर हम ये लिखते हैं तो फिर से हमको वही मिलेगा e टू द पावर x cos y प्लस आयोटा e टू द पावर x sin y। और लेकिन राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया, अगर हम लोग y की जगह पे, यहाँ पर अगर हम लोग y की जगह पे y प्लस 2 पाई करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ से यही एक्सप्रेशन मिलेगा, जो कि फिर से हम लोग को cos 2 पाई प्लस y के cos y और sin 2 पाई प्लस y के sin y के इक्वल होने के कारण से फिर से हमको e टू द पावर z मिल जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर e टू द पावर z में आप e टू द पावर z प्लस 2 पाई i, अगर हम z में z प्लस 2 पाई i कर देंगे तो हमको फिर से e टू द पावर z मिल जाएगा, क्योंकि e टू द पावर z प्लस 2 पाई i करने का मतलब हुआ z क्या है, z है x प्लस आई वाई, फिर आयोटा आपका कॉमन हो जाएगा और ये बन जाएगा y प्लस 2 पाई,
और cos y plus 2 pi is again cos y, sin y plus 2 pi is again cos y, so you will again get e to the power z. So there is no difference if we add 2 pi I to z in this function fz, or you can say f of z plus 2 pi I is same as f of z. It means that this function is periodic. तो अगर हम लोग z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं तो वो एक पीरियोडिक, तो e टू द पावर z एक पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है, और इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई i है. सो 2 पाई i इज पीरियड ऑफ e to the power z, where z is a complex number. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो भी एक इमेजिनरी आइडेंटिटी है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, आई एम सॉरी, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है. दैट क्वांटिटी इज 2 पाई i. Now let us see how trigonometric functions with complex variables are periodic. देखिए, आज मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी मैंने आपको बताया था और आज भी मैंने रिपीट किया कि साइन z1 प्लस z2, अगर z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो भी साइन z1 प्लस z2 इज साइन z1 cos z2 प्लस cos z1 साइन z2. अब अगर हम लोग यहाँ पर z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर हम लोग z2 की जगह पे 2 पाई ले लेते हैं तो हमको मिलेगा साइन z1 cos 2 पाई प्लस cos z1 साइन 2 पाई. देखिए cos 2 पाई cos 0 के इक्वल है, cos 0 1 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा साइन z1, और साइन 2 पाई साइन 0 के इक्वल जो कि 0 होता है. तो ये क्वांटिटी, ये वाला सेकंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा साइन z1. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर साइन में, जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का फंक्शन ले रहे हैं, अगर हम साइन में z1 की जगह पे z1 प्लस 2 पाई लेते हैं तो हमको फिर से साइन z1 मिलता है. इट मीन्स दैट साइन as a function of complex variable is again periodic with the same period 2 pi. Similarly cos z and is periodic with period 2 pi, tan z is periodic with period pi, जैसा कि रियल वेरिएबल्स के केस में होता है. अब हम लोग सीखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं. सो हाइपरबोलिक फंक्शंस if x is a real or complex number, real हो या complex हो, कुछ भी हो, then we define sin hyperbolic x. देखिए यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इसको sin hx नहीं लिखता हूं. दिस इज नॉट sin hx, sin hyperbolic x. Then sin hyperbolic of x, you can say sin hyperbolic is function, जैसे हम लोग sin कहते हैं, sin hyperbolic is function of x. Sin hyperbolic x is defined as e to the power x minus e to the power minus x upon 2. Cos hyperbolic x is defined as e to the power x plus e to the power minus x upon 2. Tan hyperbolic x is defined as sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x. So these are hyperbolic functions. Similarly, we can define sec hyperbolic x, cosec hyperbolic and tan hyperbolic also. चलिए कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं. Some properties of hyperbolic functions. तो हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होगा. साइन हाइपरबोलिक 0 विल बी e to the power 0 minus e to the power again minus 0 is 0 same upon 2, and e power 0 both 1 minus 1, this is 0. So sin hyperbolic 0 is 0. और अगर हम लोग साइन थीटा या साइन 0 हम लोग कहते थे वो भी 0 होता था. Again cos hyperbolic 0 will be e to the power 0 plus e to the power 0 upon 2. तो वो आपको मिल जाएगा 1 plus 1 over 2, that will be 1.
अगर हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, वी नो दिस। लेकिन अगर हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करें तो क्या सेम रिजल्ट होल्ड करेगा? मेरा मतलब है कि अगर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स करें तो क्या 1 आएगा? नो, ये 1 नहीं आएगा। दिस रिजल्ट इज रॉन्ग। तो होगा क्या, देखते हैं। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें, जो हमने डिफाइन किया है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर साथ में करें तो हो जाता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन, और दोनों में एलसीएम 4 था तो हम लोगों को मिल रहा है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, एंड दिस इज cos हाइपरबोलिक 2x। जैसे हम लोग बात करते हैं cos हाइपरबोलिक x की, वो हो जाता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो अगर हम लोग cos हाइपरबोलिक 2x लिखेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, बट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x वो 1 नहीं होता है। तो क्या कुछ उस तरह की आइडेंटिटी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है? हाँ, यहाँ पर भी उस तरह की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 होल स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको 1 मिलेगा। सो यहाँ पर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x 1 होता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि cos हाइपरबोलिक 2x क्या होगा। तो cos हाइपरबोलिक 2x जो है ये हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x था, और अगर हम उसमें ये वाला रिजल्ट भी यूज कर लेते हैं, ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि cos हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, या फिर यही इक्वल होगा 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। ये आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर आप cos हाइपरबोलिक 2x को cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, जैसा हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, उसमें ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये दोनों रिजल्ट्स भी आपके आ जाएंगे। फिर आपके लिए करने के लिए मैं आपको देता हूँ साइन हाइपरबोलिक 2x, ये उसी तरह से जैसे साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा, उसी तरह से साइन हाइपरबोलिक 2x इज 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। इसे भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये होता है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। और इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों की, चाहे एप्सिलॉन की बुक हो या कृष्णा की बुक, दोनों ही बुक्स में दिए हुए हैं। तो वो सारे जो सिमिलर रिजल्ट्स हैं, वो सारे रिजल्ट्स आप लोग आज जरूर ट्राई कीजिएगा। Now we will see some important relations between hyperbolic and circular functions. सबसे पहले मैं सर्कुलर फंक्शंस नाम और हाइपरबोलिक फंक्शंस नाम पे जाता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, सपोज ए रेडियस का सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए कॉस थीटा और वाई के प्लेस पर ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये पैरामीट्रिक
इक्वेशन है या प्राचर निर्देशांक भी बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल को पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोसाइन और साइन फंक्शंस की मदद से हम कर सकते हैं। तो इन्हें हम एक तरीके से सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं। अगर हम लोग हाइपरबोलिक नाम पे जाते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, ये भी हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है, उसमें हम लोगों ने बी और ए दोनों के इक्वल लिया है। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा और y के प्लेस पर a साइन हाइपरबोलिक थीटा रखें तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। और आज मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, माइनस करने पर 1 आता है। तो ये आपको मिल जाएगा अगेन ए स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर मिल रहा है। हाइपरबोला की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने ली है वो हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस के टर्म्स में ली हैं। सो कुछ हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शंस जो नाम जो डिराइव्ड हैं वो हम लोग यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक रिलेशंस की बात है, रिलेशंस बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस, तो जैसे कि पहला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो है साइन ऑफ आई एक्स इक्वल्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अगर इस रिजल्ट को प्रूव करना हो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे साइन ऑफ आई एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ आई एक्स, साइन एक्स को हम लिखते हैं e टू द पावर साइन एक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं e टू द पावर आयोटा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2i। तो अगर हम लोग साइन आई एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर i इंटू आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस i इंटू e टू द पावर माइनस i इंटू आई एक्स अपॉन 2i। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, केवल x के प्लेस पर ix यहाँ पर हम लोगों ने x के प्लेस पर ix ले लिया है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया e टू द पावर i टू i स्क्वायर एंड i स्क्वायर इज माइनस 1। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस x और ये हो गया अगेन आई स्क्वायर, लेकिन माइनस आई स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 2i। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 1 और अंदर आपको क्या बचेगा, क्या मिलेगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2i। फिर अगर हम लोग माइनस 1 की जगह पे आई स्क्वायर पुट कर दें, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर से आपका एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा आई आयोटा और क्या बचेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, जो कि क्या होता है, जो कि साइन हाइपरबोलिक x होता है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि साइन ऑफ आई एक्स is equal to iota sine hyperbolic x. So this is a relation between sine, circular sine and hyperbolic sine. दूसरा एक important result है cos of ix equals cos hyperbolic x. फिर इसी तरह से अगर हम लोग बात करें tan of ix, तो tan of ix is equal to I iota tan हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पहला रिजल्ट प्रूव किया है उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर करने के लिए मैं आज काफ़ी सारा काम दे रहा हूँ। एक ये भी आपका होमवर्क है, फिर पिछली स्लाइड्स में भी मैंने आपको बहुत सारा काम पहले से ही होमवर्क में दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। हम लोग जानते हैं साइन ऑफ x इज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अगर हम लोग x से प्लेस पर आयोटा थीटा यहाँ पर हम रिप्लेस करें x को आयोटा थीटा से आई थीटा से,
तो हम लोगों को मिलेगा साइन ऑफ आई थीटा इक्वल्स, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा होल क्यूब divided by factorial 3 plus iota theta to the power 5 divided by factorial 5 and so on. साइन आयोटा थीटा, अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि साइन आई एक्स इज आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और यहाँ पर हम लोग आई कॉमन लें, यानी कि इमेजिनरी पार्ट निकालना चाहें तो इमेजिनरी पार्ट हमें मिलेगा थीटा, आई स्क्वायर -1 होता है, तो आई क्यूब जब हम करेंगे तो एक माइनस आई आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई कॉमन ले चुके हैं तो हम लोग को मिलेगा थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, आई टू द पावर 4 + 1 होता है तो आपको आई बचेगा, आई हम लोग ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा साइन हाइपरबोलिक थीटा is equal to theta plus theta cube divided by factorial 3 plus theta power 5 divided by factorial 5 and so on। तो इस तरह से हम लोग साइन हाइपरबोलिक थीटा को थीटा की पावर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर हम लोग साइन हाइपरबोलिक थीटा को या साइन हाइपरबोलिक एक्स को एक्स की पावर्स में या थीटा की पावर्स में करना चाहें, वो इस तरह से है कि हम साइन हाइपरबोलिक थीटा को लिख सकते हैं e to the power theta plus e to the power theta minus, it is minus e to the power minus theta divided by 2। अगर हम लोग यहाँ पर e to the power theta की वैल्यू जो कि एक्सपेंशन है वो हम अगर यहाँ पर यूज करें तो e to the power theta हो जाएगा 1 plus theta square upon factorial 2 plus theta cube upon factorial 3 and so on, this is e to the power theta। अगर हम लोग e to the power minus थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा, और स्क्वायर टर्म वही रहेगा, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्या होगा कि जो स्क्वायर टर्म्स हैं या इवन पावर वाले टर्म हैं वो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, 1 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2 टाइम्स थीटा एंड अपॉन 2 भी है तो ओवरऑल हमको मिलेगा थीटा, फिर इसी तरह से 2 टाइम्स थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। तो देखिए वही सेम रिजल्ट जो भी हम लोगों को मैंने पहले बताया साइन हाइपरबोलिक थीटा इस तरह से बताया, उसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक थीटा का थीटा की पावर्स में ये एक्सपेंशन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस हाइपरबोलिक थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस थीटा टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ में यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। देखिए जैसे कि साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर हम बात करें पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इन द सेम वे हाइपरबोलिक फंक्शंस आर आल्सो पीरियोडिक, लेकिन इनका पीरियड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे कॉस हाइपरबोलिक की अगर हम लोग बात करें तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसका पीरियड 2 पाई आई होता है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए कॉस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ सपोज z प्लस 2 पाई आई, अगर हम ये करते हैं तो हमको मिलेगा e टू द पावर z प्लस 2 पाई आई प्लस e टू द पावर माइनस z प्लस 2 पाई आई डिवाइडेड बाई 2। अगर हम e टू द पावर 2 पाई आई की बात करेंगे तो हम इसे कह सकते हैं जैसे e टू द पावर आई थीटा होता है आयलर्स फॉर्मूला से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो e टू द पावर 2 पाई आई हो जाएगा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, और cos 2 पाई 1 हो जाएगा, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, ओवरऑल हमें मिला 1। सिमिलरली e टू द पावर माइनस 2 पाई आई की बात अगर हम करेंगे तो वो भी हमें 1 मिलेगा।
तो e टू द पावर 2 पाई आई और e टू द पावर माइनस 2 पाई आप लोग ध्यान रखें कि ये दोनों की वैल्यूज 1 होती हैं। अगर हम यहाँ पर e टू द पावर 2 पाई आई और e टू द पावर माइनस 2 पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2, जो कि फिर से cos हाइपरबोलिक z है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2 पाई आई इज पीरियड ऑफ cos हाइपरबोलिक z as a function of complex variable. Similarly, अगर हम चाहें तो हम प्रूव कर सकते हैं sin hyperbolic z plus 2 pi i, और वो भी आपका sin hyperbolic z होगा। तो sin hyperbolic is also periodic, उसका पीरियड 2 pi i होता है। ये आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि tan hyperbolic जैसे tan x का पीरियड पाई होता है, लेकिन अगर हम tan hyperbolic की बात करेंगे तो यहाँ पर पीरियड पाई आई होगा, 2 पाई आई नहीं होगा, पाई आई होगा। यानी कि आपको tan हाइपरबोलिक z प्लस पाई आई करने पर फिर से tan हाइपरबोलिक z मिल जाएगा। सो tan हाइपरबोलिक इज आल्सो पीरियोडिक बट विद पीरियड 2 पाई बट विद पीरियड पाई आई। एक चीज और है, अगर हम लोग ये आइडिया कहाँ से आता है कि हाँ इसका पीरियड 2 पाई आई होगा, क्यों होगा इसका पीरियड 2 पाई आई? देखिए उसके पीछे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। अब देखिए जहां तक cos ix की बात है तो cos ix, या अगर हम कोसाइन फंक्शन की बात करें तो जो कोसाइन फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है, और कोसाइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग cos ix प्लस 2 पाई करते तो हम लोग को क्या मिलता? अगर हम लोग cos ix प्लस 2 पाई करते तो हम लोगों को फिर से cos ix मिल जाता, और अगर हमको cos ix मिल जाता तो वो क्या हो जाता? वो हमारा cos हाइपरबोलिक x हो जाता। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर आखिरकार हम लोग x के प्लेस में क्या डिफरेंस लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है cos, और इफ वी टेक आयोटा कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई अपॉन आई, x प्लस 2 पाई अपॉन आई, और यहाँ पर x प्लस 2 पाई अपॉन आई को हम लिख पाएंगे cos आयोटा, और जो 1 अपॉन आई होता है वो माइनस आई होता है, तो ये हो जाएगा cos आयोटा x माइनस 2 पाई आई, ये हो जाएगा cos आयोटा x माइनस 2 पाई आई। जैसा मैंने यहाँ पर किया, अगर उसी तरह से मैंने ये यूज किया होता कि cos ऑफ x माइनस 2 पाई कितना होता है, या यहाँ पर जैसे cos ix प्लस 2 पाई से शुरुआत की थी, अगर मैंने cos ix माइनस 2 पाई से शुरुआत की होती तो मुझे क्या मिलता? cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो ये हो जाता cos 2 पाई माइनस ix, और cos 2 पाई माइनस थीटा फिर से, यानी कि अगर मैंने जैसे यहाँ पर cos ix प्लस 2 पाई से शुरू किया है, यहीं पर मैं यहाँ पर cos ix माइनस 2 पाई भी कर सकता था, और अगर cos ix माइनस 2 पाई करता वहां पर i कॉमन लेता तो यहाँ पर आपको क्या मिलता? यहाँ पर मिलता माइनस 1 अपॉन आई, और माइनस 1 अपॉन आई को मैं लिख सकता था प्लस आई। तो इसलिए वही बात होती, बस यहाँ पर अब हमको क्या मिल जाता? cos आयोटा x प्लस 2 पाई आई, क्योंकि आप आयोटा अंदर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा ix, और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई, और फिर से हमको अल्टीमेटली मिलता क्या? हमको अल्टीमेटली cos हाइपरबोलिक x ही मिलता। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, या इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं। वो आइडिया ये है कि अगर हम लोग cos हाइपरबोलिक x के पीरियड की बात करें तो वो बेसिकली जो कि कोसाइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है, तो प्लस 2 पाई या माइनस 2 पाई करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम आयोटा बाहर करने के बाद देखेंगे कि x में क्या चेंज हो रहा है, तो x में अल्टीमेटली जो चेंज हो रहा है वो है प्लस 2 पाई आई या माइनस 2 पाई आई। इसलिए अगर हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से हम ये आइडिया ले सकते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन का जो पीरियड होगा वो 2 पाई आई होगा, जहाँ पर केवल 2 पाई वो पीरियड है कोसाइन फंक्शन का। इसी तरह से वही इफेक्ट हमको साइन हाइपरबोलिक में दिखा कि साइन हाइपरबोलिक का जो पीरियड होगा वो 2 पाई आई होगा, और जैसा कि tan x, केवल अगर हम tan x की बात करते हैं तो उसका पीरियड पाई होता है, लेकिन जब हम tan हाइपरबोलिक में गए तो वहां पर पाई ना होकर के पाई इंटू आई, यानी कि आयोटा पाई हो गया। तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही रखता हूँ, बहुत सारा काम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो इसलिए बस आप लोग ये सारे जितने भी आपको काम दिया गया है इसको असाइनमेंट की तरह से आप बिल्कुल सही तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर के साथ साथ आपको एक फ्रेश असाइनमेंट भी दूंगा। थैंक यू।